السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة قط في يوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا رواه سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 کا ایک ٹکڑا پڑھی ہے، لہذا اس حدیث میں 5 ایسی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جب 5 گناہ لوگ کریں گے تو آخرت کے سزا کے علاوہ اللہ رب العالمین اسی دنیا میں 5 عذاب 5 سزا امت کو دنیا ہی میں دے دے گا۔ آئیے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، بیان کرتے ہیں ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في مضت أسلافهم الذين مضوا ولو ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة الموهنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقذوا أحد الله وعد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ہمیں فرمایا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، 5 باتیں ایسی ہیں کہ تم ان میں مبتلا ہونا اور میں اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان 5 باتوں میں مبتلا نہ ہونا۔ پہلی بات، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم میں برائیاں کھلا ہونے لگے اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین طاعون کی بیماری کو بھیجتا ہے، اور ایسی بیماری کو بھیجتا ہے جو ان کے پچھلے لوگوں میں وہ بیماری نہیں تھی۔ اس حدیث کے ٹکڑے میں غور کرے۔ آج اسلامی معاشرے میں برائی کھلا ہو رہی ہے۔ جو برائی کل پردے کے پیچھے ہوا کرتی تھی، لوگ پردے کے آڑ میں کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس برائی کو آج کے لوگ برائی تصور نہیں کرتے ہیں، اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے، کھلا اس برائی کا اعتراف کرتے ہیں، اس برائی کو کرتے ہیں، اور کرنے کے باوجود لوگوں کے سامنے فخر سے بیان بھی کرتے ہیں کہ فلاں رات میں نے یہ کام کیا۔ تو نتیجے میں اللہ رب العالمین طاعون کی بیماری کو بھیجتا ہے۔ ایسے معاشرے میں طاعون کی بیماری عذاب کے شکل میں اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، یا ایسی بیماری کو بھیجتا ہے جن کا نام و نشان ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں نہیں تھا۔ آج غور کریں کہ ایسی بیماری ہمارے درمیان ہے جو ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں، پچھلے لوگوں کے زمانے میں وہ بیماری نہیں تھی، اس بیماری کے نام تک نہیں جانتے۔ وجہ یہ ہے ہم کھلا برائی کرنے لگے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث میں جو بیان کی گئی، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन वसुद्दतिल मऊनति वजौर सुल्तान अलैहिम। जब लोग नाप तोल में कमी करने लगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दरमियान कहत को भेजेगा, कहत शादी को भेजेगा, माशी तंगी को भेजेगा और जालिम हुक्मरानों के द्वारा, जालिम हुक्मरानों के जरिए इसे परेशान करेगा। आज देख सकते हैं मार्केट में जितने दुकानें हैं, हर कोई अपनी ग्राहक को धोखा देने में लगा हुआ है। जब लेने की बारी आती है तो ज्यादा लेते हैं और जब देने की बारी आती है तो अपना सामान कम देते हैं और इस बुराई को हम बहुत हल्के में लेते हैं। लोगों को धोखा देना, लोगों को कम देना, ये हमारा रवाज बन चुका है, हमारी आदत बन चुकी है और हम इसे गुनाह तस्वुर नहीं करते। मेरे भाई आपको याद दिलाऊं, कुरान मजीद की तिलावत करें कि इसी बुराई की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कौम को इस दुनिया से हलाक व बर्बाद किया था। उस कौम के अंदर दो बुराई थी, एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो शिर्क करता था और दूसरी बुराई वो नाप तोल में कमी किया करता था। वो है हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम के कौम। कुरान मजीद में उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून। हलाकत और बर्बादी हो ऐसे लोगों के लिए जो नाप कर लेते तो पूरा पूरा लेते हैं और जब देने की बारी आती है तो कम देते हैं। शिर्क और नाप तोल की कमी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को इस रूए जमीन से हलाक व बर्बाद किया है। लिहाजा हम इस बुराई को बहुत हल्के में ना लें। यही बुराई की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहत साली को हमारे ऊपर भेजता है। रिज़्क़ की तंगी हमारे दरमियान मौजूद है। हम में से हर शख्स के ज़बान से ये अल्फाज हैं, मेहनत और मजदूरी के बावजूद भी खर्च कम पड़ रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी इखराजात पूरे नहीं होते, घर की जरूरियात पूरी नहीं हो पाती। मेरे भाई, हम जब दूसरों को धोखा देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रिज़्क़ से, हमारी कमाई से बरकत को छीन लेता है। अब आइए तीसरे गुनाह का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में फरमाए, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम। जब लोग ज़कात के माल अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश को रोक लेगा, आसमान से बारिश का एक कतरा भी नाजिल नहीं होगा, आसमान से बारिश का एक कतरा पानी जमीन पर नहीं गिरेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वलौलल बहायुम लम युमतरू। अगर जमीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दूसरे मखलूकात चौपाए ना होते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी कभी नहीं नाजिल करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश कभी नाजिल नहीं करता। यानी ज़कात ना देना कितना बुरा फेल है, कितना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन रोक लेता है। और यकीन जाने आज उम्मत मुस्लिमा के हालात ये है कि इनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी नाजिल नहीं करता है। पानी दूसरे मखलूक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बरसाता है और हम कह सकते हैं कि उन मखलूकात के सदके में उस पानी से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पानी को हम अपने काम में लगा रहे हैं, उससे हम फायदा उठा रहे हैं। वरना हमारे गुनाह इस कदर बढ़ चुके हैं, ज़कात कोई देना नहीं चाहता है। कितने सालों का ज़कात पड़ा हुआ है, इल्ला माशाअल्लाह जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे, जिसे हिदायत दे, वही आदमी हर साल ज़कात के माल अदा करता है। वरना माल की लालच में इंसान ज़कात के माल को भी खा जाता है और अपने माल को बढ़ाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। मेरे भाई, अगर ये बुराई हमारे अंदर है इससे तौबा करे, ज़कात के माल को पूरी तौर पर अदा करे, क्योंकि ज़कात के माल आपके लिए हलाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ज़कात तो इसलिए वाजिब किया गया ताकि आपको माल को पाक किया जाए और आपको पाक किया जाए। ज़कात के माल इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों की हलाल परवरिश नहीं कर सकते। अब आइए इस हदीस में जो आगे बयान किया गया,
चौथी चीज, वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम, कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहद को लोग पूरा ना करे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी ना गुजारी जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मन कौम में से किसी को आपके ऊपर मुसल्लत कर देगा और वो आपके पास जो कुछ होगा उसको वो छीन लेगा। आज हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हर मोड़ पर हमें ठोकर लगती है। हमारे पास जो नियामतें हैं, जो ऐशो आराम की जिंदगी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे को दे दिया है। दूसरे हमारी नियामतों को छीन रहे हैं, हमारे नियामतों को हमसे ले रहे हैं और हमें इसका अंदाजा नहीं होता है। वजह यह है, हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहद को पूरा नहीं किया है, पूरा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ये चीजें छीन ले रहे हैं, नियामतें छीन कर दूसरे को दे रहा है। आखिरी चीज, वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि, जब मुसलमानों का अइम्मा इमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के किताब के मुताबिक फैसला ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के मुताबिक लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ ना करे, इल्ला जअलल्लाहु बासहुम बैनहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दरमियान फूट डाल देगा। आज मुसलमानों के दरमियान फूट किस कदर पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। एक मुसलमान दूसरे से मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के तय अपने दिल में बुग़्ज़ पाल रहा है, अपने दिल में दुश्मनी पाल रहा है और एक दूसरे से इंतकामी बदला लेने के लिए तैयार रहता है। इसकी वजह यह है, आज इस मुआशरे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक फैसला नहीं किया जा रहा है, अपने मनमानी फैसला हो रहे हैं, अमीर अपने मनमाने तौर पर फैसला कर रहे हैं, हाकिम अपने मनमाने तौर पर फैसला कर रहे हैं, फैसले में अदल व इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं और अपने दरमियान फूट डाले हुए हैं। लिहाजा हदीस का खुलासा यह है कि हम ऐलानिया तौर पर बुराई से बचे, हर जगह बुराई से बचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल में रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जालिम बादशाहों से हमारी हिफाजत करेगा, हम हर बीमारी से महफूज रहेंगे। इसी तरीके से नाप तोल में कमी ना करे, किसी को धोखा ना दे, वरना कहत साली का सामना करना पड़ेगा, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है, जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। तो आज जालिम बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत है, जिसका अंदाजा हम कर सकते हैं, उठते बैठते अखबारात को पढ़ते हुए, कवानीन को पढ़ते हुए कर रहे हैं। लिहाजा इस हदीस पर अमल करें, इन 5 बुराई से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।